Hello all the future warriors, myself Drishti Goyal, and this particular session I am going to discuss about 20 AFSB interview questions for flying branch. ठीक है, many of you might be joining the flying branch or want to join the flying branch and fly the aircrafts, right? So in this particular session I am going to help you with the questions which will specifically be asked regarding your flying branch, ताकि आप लोग उनको प्रिपेयर करके जा सको एंड इजीली क्रैक कर पाओ अपने पर्सनल इंटरव्यू की इन योर एसएसबी. ठीक है, सो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की. सो देयर आर डिफरेंट ब्रांचेस इन योर एयरफोर्स. इफ यू डोंट नो, यू शुड नो देम. Amongst them, one of the most important branch is your flying branch. So joining flying branch of Indian Air Force is dream of many, and it is a very common that entry related questions are asked to the candidates based upon their branches, qualification and what he or she is applying for. आपका जो फॉर्म रहेगा ना, गूगल फॉर्म, that will also be there with your assessors, and they will be having your priorities list with you, all the branches you are eligible with, and they will definitely going to ask specific questions regarding that as well. They will even ask if you why don't you want to join into flying branch, or why you want to join into flying branch. ठीक है, ऐसे करके भी स्पेसिफिक आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. आपके प्रेफरेंस भी पूछेंगे कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे फ्लाइंग ब्रांच को क्यों रखा. Okay, so here if a candidate wants to join flying branch, he or she is expected to know basic field related questions, knowledge of the air force, knowledge of the flying branch, where are the fighter pilots engaged, what is the training, how long is the training duration, where will be the training taking place. ठीक है, what all लाइक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आर देयर. सो बहुत सारी चीजें पूछी जाती है. और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, टू ज्वाइन द फ्लाइंग ब्रांच ऑफ इंडियन एयरफोर्स इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू हैव फिजिक्स एंड मैथ्स टिल योर क्लास 12th. ठीक है, एंड यू हैव टू बी फ्रॉम द 10+2 system of the education system only. You cannot go through diploma and any other field in air force. ठीक है, वो चेंज कर दिया अभी. तो 12th कंपल्सरी है, एंड इन 12th you should have physics and mathematics. Also graduation के बाद ही आप AFCAT के लिए अप्लाई कर सकते. ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच के स्पेसिफिक क्वेश्चंस की. So you should be knowing about all the branches. So they can ask what are the 3 sub branches in which flying branch is bifurcated into. तो फ्लाइंग ब्रांच को किस किस ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. तो अगर आप सोचोगे तो आपको आंसर खुद को आ जाएगा. सी आई एम नॉट गोइंग टू टेल आंसर्स इन दिस सेशन. मेक श्योर एंड टेस्ट योरसेल्फ. Write the answers of the question, how many you already know, and for those which you don't know, do research, make a notebook, write them off and practice regarding them. Okay, then name the 3 helicopters of Indian Air Force. आपको पता है हेलीकॉप्टर्स और अपना एयरक्राफ्ट्स और जो आपके यूटिलिटी एयरक्राफ्ट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एटलीस्ट 5 सबके नाम पता होने चाहिए, along with their origination or the country from which we have bought them. ठीक है, उसके बाद what is the principle on which aircraft fly. See, very important. I told you na, you must have physics and maths till your 12th. So they are going to ask questions related to physics and mathematics as well. ठीक है, ऑब्जर्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं. बेसिक जो प्रिंसिपल्स है उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. ऑल्सो योर बर्नौलीज प्रिंसिपल and your buoyancy force is very important because they are playing a vital role in मेकिंग योर एयरक्राफ्ट फ्लाई. तो उनके रिगार्डिंग तो प्रिंसिपल्स के बारे में पूछते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सेम. एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज buoyancy एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी द मोस्ट रीसेंट एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इन द IAF. इंडियन एयरफोर्स में कौन सा एयरक्राफ्ट इंडक्ट किया है, कहाँ से हमने लिया, कौन सी कंपनी ने उसे बनाया है, कितना टाइम उसे लगा बनाने में, कितने नंबर में हमने उसको परचेज किया है, कौन से बेस पे हमने उसको इंडक्ट किया है. So these are basic questions. Okay. Then what is the role of aircraft in Indian Air Force? है ना, अब आप बोलोगे मैम बहुत obvious question है, but obvious question के भी आपके पास answers होने चाहिए. Then what is the Air Force doing with its aircraft when it is not at war? जब वो war पे नहीं है उस टाइम पे एयरक्राफ्ट के साथ क्या किया जाता है ना. प्रैक्टिस शॉर्टेज होते हैं, और भी जो हमारे मिशंस रहते हैं या फिर अपनी एक्सरसाइजेस रहती है, बायोलेटरल एक्सरसाइजेस, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एयरक्राफ्ट दैट वाज एडेड टू द विंटेज फ्लीट ऑफ IAF. सो दे कैन आस्क अबाउट डिफरेंट फ्लीट्स, इवन स्क्वाड्रंस, नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस, व्हिच इज द लाइक स्क्वाड्रन ऑफ राफेल और द स्क्वाड्रन ऑफ योर तेजस. तो ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं. ठीक है, what is the largest aircraft with the Air Force?
सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हमारा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो हमने अगेन कहाँ से बनवाया, कौन सी कंपनी से लिया, कौन सी कंट्री से लिया। तो वैसे करके मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। हु इज आवर बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना, और वी हैव आल्सो स्टार्टेड ट्रेडिंग और एक्सपोर्टिंग आवर डिफेंस इक्विपमेंट्स। तो कौन सी कंट्री को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देन टेल मी द नेम ऑफ एनी 5 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आई हैव टोल्ड यू आपको एयरक्राफ्ट के नाम पता होने चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोट, नॉटिकल माइल्स एंड मैक। सो दीज आर यूनिट्स, है ना, ऑफ डिस्टेंस और स्पीड इन डिफरेंट मीडियम लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देन टेल मी द नेम ऑफ 5 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो फाइटर एयरक्राफ्ट के आप नाम ले दोगे, मान लो आपने 5 नाम ले दिए, ठीक है। तेजस हो गया, रफेल हो गया, आपका स्कोई हो गया, है ना, देन योर मिराज हो गया, मिग हो गया। तो जैसे मान लो आपने मिग 21 का नाम लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली विल कम, ओके वी हैव ग्राउंडेड द स्क्वाड्रंस ऑफ मिग 21। तो क्यों है ऐसा, व्हाट इज द रीजन, व्हाई इज इट ग्राउंडेड एंड व्हाई वाज नॉट इट ग्राउंडेड अर्लियर, क्या क्या इश्यूज हमें फेस करने पड़े थे, व्हाट वाज द रीजन ऑफ दीज क्रैशेस ऑफ मिग 21। तो ऐसे करके क्वेश्चन से क्वेश्चन में लीड जाएगा, ओके। तो थोड़ा बेसिक आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। देन व्हाट इज स्ट्रीमलाइन शेप, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट, और व्हाट इज फ्लाई बाय वायर सिस्टम इन द एयरक्राफ्ट। सो रिगार्डिंग द शेप्स एंड द way of like taking flight, many questions can be asked, so these are technical questions, okay. Then can you tell me what all are the trainer aircraft with the IAF, very important है, आपसे पूछेंगे कि अगर आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट they'll ask where will you be sent for the training, ठीक है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रेनिंग, टेल मी द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। देन दे कैन आस्क अबाउट द ट्रेनर एयरक्राफ्ट, सो व्हिच आर ऑल द ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो आपको उनके नाम भी मालूम होने चाहिए, किरण है, हॉक है, मेनी अदर आर देयर, ठीक है। देन इफ यू आर एनसीसी एंड दैट इज फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, अगर आपकी एनसीसी एयरफोर्स विंग से है, डेफिनेटली डीप क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द पार्ट्स ऑफ योर एयरक्राफ्ट, ठीक है। या फिर आपने काफी अच्छे से रिसर्च भी की होगी, है ना, तो आप लोगों को ऑलरेडी ज्यादा पता है एयरफोर्स के बारे में, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है फॉर दोज हु आर एनसीसी कैडेट्स, ठीक है। नेम द पार्ट्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नोज टिल टेल, ठीक है, एयरक्राफ्ट की नोज से स्टार्ट करके टेल तक सारे पार्ट्स बताओ, ओके। एंड दे कैन इवन आस्क अबाउट डिफरेंशिएशन, सो टेल मी डिफरेंस बिटवीन मिग 21 एंड रफेल। तो ऐसे करके भी पूछ लेंगे कि अब बताओ क्या डिफरेंस है एयरक्राफ्ट में, अगर यू हैव टू डिफरेंशिएट तो ऑन व्हाट फैक्टर्स विल यू डिफरेंशिएट। देन इन विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर डू एयरक्राफ्ट फ्लाई, ठीक है, आपको पता ही होगा सबको कि एयरक्राफ्ट जनरली फ्लाई इन स्ट्रेटोस्फियर, फिर उसका रीजन पूछेंगे क्यों है ऐसा, बाकी सारे लेयर्स में क्यों नहीं करे, इवन दे कैन आस्क अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर एज वेल। तो वो बेसिक आप प्रिपेयर करके रखना। देन नेम डिफरेंट इंजन्स, है ना, बहुत सारे डिफरेंट इंजन्स है ना, फ्रॉम वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक यूएसए एंड फ्रांस। तो आपसे पूछ सकते हैं कि हम खुद अपना इंजन क्यों नहीं बना पा रहे अभी, और विच company of India are working towards the indigenization or indigenized production of defense equipments. So ऐसे करके आपसे पूछा जा सकता है। Then name indigenized aircrafts, ठीक है, indigenous aircrafts or other equipments used by Indian Air Force which are made in our country only. Then name new inductions in Indian Air Force or what are the future plans. और उसके अलावा भी काफी चीज आपसे पूछी जा सकती है रिगार्डिंग द एयरक्राफ्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में जाना चाहते हो, so make sure you are going through about these things. Except from that, you should also be having thorough knowledge about the Indian Air Force, its working, its branches, ठीक है, its commands, its headquarters, and new weapon system operator command has been added, or the branch has been added to Indian Air Force। तो उसके रिगार्डिंग भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और हाउ इज दिस ब्रांच एसोसिएटेड विद फ्लाइंग ब्रांच, या फिर फ्लाइंग ब्रांच से कैसे डिफरेंस है। तो ऐसे करके भी काफी चीजें पूछी जा सकती है। दे कैन इवन आस्क यू टू कंपेयर द फ्लीट ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू अदर कंट्रीज फ्लीट ऑफ एयरफोर्स, ठीक है।
तो नॉलेज होना चाहिए. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. Along with that, if you want to know more about the questions and the preparation patterns, you can definitely enroll to our SSB online course. You can also enroll to our written examinations, be it your NDA, CDS, CFK, or any other exam preparation you want to do. You can apply the code Warrior10 for extra 10% discount. And if you are having your SSB very soon and you have any doubt, you can feel free to ask us. Rest, prepare well, get recommended soon. My best wishes are always with you. All the very best. Bye bye, take care and Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.